नमस्कार, न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं जब्बार अली और मेरे साथ हैं मेरे सहप्रतिनिधि सुब्रतो श्रीकांतो और राज। अभी हम लोग मौजूद हैं इस्लामपुर स्टार सिनेमा हॉल के सामने, जहां इस वक्त एलएफएस ब्रोकिंग, जो कि एमओएल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का एक ब्रांच है, जहां आप कह सकते हैं कि मनी रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ है उस फैसिलिटीज़ को यहाँ उपलब्ध कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ डीमैट, कमोडिटी, इक्विटी, उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पीएमएस, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी जिसको कहा जाता है, और आईपीओ और करेंसी एक्सेट्रा, इसके बारे में सलाह ले सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के जो आपका मकसद है या मंसूबा है उसको पूरा कर सकते हैं। इसका ही ग्रैंड ओपनिंग में हम लोग यहाँ मौजूद हैं। एलएफएस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसका ब्रांच ऑफिस अंडर द एमओएल ग्रुप ऑफ कंपनीज, जो कि थोड़ी देर पहले यहाँ का फीता काट के उद्घाटन किए। इस कंपनी का सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एमओएल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मिस्टर सैयद जियाजुर रहमान, और साथ ही साथ मौजूद हैं डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मिस्टर अनवरुल हक, और साथ ही साथ मिस्टर अनवरुल इस्लाम, और साथ ही साथ मौजूद हैं डायरेक्टर शौकत अली, और इस ब्रांच के जो हेड हैं रुस्तम अली। चलिए उसका सीधा सीधा प्रसारण आपको दिखाते हैं और किस तरह की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होगी वही आपको हम एक बार बताने का कोशिश करेंगे। एमओएल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का जो सर्विस है वो एक बार आप देख सकते हैं। डीमैट अकाउंट, कमोडिटी, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पीएमएस, एसआईपी, आईपीओ और करेंसी, ये सभी आप उपलब्ध कर सकते हैं। उससे पहले एक बात बता दें, एमओएल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो हिंदुस्तान के 7वें कंपनी में से एक कंपनी है जिसमें ये सुविधाएं आप देख सकते हैं। मॉल डेयरिंग, एमओएल और मॉल कमोडिटीज़, एलएफएस ब्रोकिंग एंड पीएमएस सर्विसेज, लेनिंग सर्विसेज, और साथ ही साथ एलएफएस एडवाइजर्स, ये सभी आप देख सकते हैं। चलिए सीधा सीधा उस प्रोग्राम को हम दिखाते हैं जहाँ यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, सीईओ है, उससे हम बात करेंगे और उन लोगों के साथ बात करने का कोशिश करेंगे क्या कहते हैं वो लोग। शेयर मार्केट কোনো আমিরের ফ্রেন্ড নয়, কোনো চিট ফান্ড নয়। শেয়ার মার্কেট একটা ভালো ইনভেস্টমেন্টের জায়গা। আমরা অনেক কোম্পানিতে কাজ করেছি, পাবলিকের পয়সা সময় মতো দেয় নাই, পয়সা নিয়ে চলে গেছে, অনেক ধোঁকাধারি হয়েছে। আমি 8 থেকে 10 সাল পর্যন্ত কাজ করছি। আজ আমার কমসে কম 20,000 উপরে অ্যাকাউন্ট হয়েছে। ভালো পিএমএস সার্ভিসে অনেক অ্যাকাউন্ট দিয়েছি। আমি তো এটা মনে করি কি যদি আপনার কাছে 100 টাকা আছে তো 100 টাকা পকেটে না রেখে টাকাটা শেয়ার মার্কেটে নিবেশ করুন। একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আজকে 1 কিলো চিনির দাম হচ্ছে 100 টাকা, 1 বছরের পরে ওই চিনির দামটা হবে 110 টাকা। যদি আমি ওই টাকাটা পকেটে না রেখে শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্টমেন্ট করি, তাহলে আমাকে ওই যে 110 টাকার, যেটা 110 টাকা 10% বেড়ে গেছে, তো 10% বেড়ে আমার টাকাটা খরিদারি করবার না, ওটা আমাকে সস্তা পড়বে। যদি আমার টাকাটা পকেটে রেখে দিতাম তাহলে আমাকে 110 টাকা দিয়ে ওই চিনিটা কিনতে হতো। এখন যদি সেই চিনিটা কিনতে যায় আমাকে 1 কিলো চিনি পাওয়া যাবে না, আমাকে 850 গ্রাম চিনি পাওয়া যাবে। তো আমি এটা মনে করি যে আজকাল লোকেরা অন্য জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট করে, এই ইনভেস্টমেন্ট না করে শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্টমেন্ট করা সবথেকে বেশি ভালো। আজকাল ইনভেস্টমেন্ট করার বেস্ট জায়গা হচ্ছে একটা মিউচুয়াল ফান্ড, আর আপনার রিয়েল এস্টেট, আর হচ্ছে আপনার শেয়ার মার্কেট। তো আমরা বেশিরভাগে চেষ্টা করব, এখানকার লোকে বোঝাবে, আমার কোম্পানির সিও এসেছে, সে বোঝাবে কি শেয়ার মার্কেট সবচেয়ে বেস্ট আছে। 1979-তে শেয়ার মার্কেট সেন্সেক্স 100 পয়েন্ট ছিল, এখন 52,000। যদি 1979-তে 1 লক্ষ টাকা আমি শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্ট করতাম, এখন 1,52,000 টাকা হয়ে যেত। যদি আমি সেই সময় মাত্র 25,000 টাকা উইপ্রো কোম্পানিতে আমি শেয়ার নিবেশ করতাম, এখন সেটা হয়তো 250 কোটি টাকা, মানে 60% অ্যাভার দেন। তো আমি এখানকে এসছি সুরাট থেকে, এখানে ইসলামপুরে একটা নতুন ব্রাঞ্চ করছি এলএফএস ব্রোকিংয়ের। যদি সম্ভাবনা হয় এখানকার জনগণকে ভালোভাবে শেয়ার মার্কেটের সামনে আমি কথা কিছু রাখবো, আর শেয়ার মার্কেট মানে কীভাবে নিবেশ করা হয়। আমার কোম্পানির সিইও এসেছেন স্যার জিয়াউর রহমান, সাথে কোম্পানির ডাইরেক্টর, আমার সিনিয়র ডাইরেক্টর আছে, ইনি আমাকে ভালোভাবে শেখাচ্ছেন যে পিএমএস কী, শেয়ার মার্কেট কী, শেয়ার মার্কেট কীভাবে নিবেশ করা হয়, শেয়ার মার্কেট নিবেশ করলে আগে কী হয়। আমরা জন্ম থেকে
গরিব হয় না, কর্মতে গরিব হয়। গরিবই তখন থেকে দূর হয় কি যারা বিজনেসে ইনভেস্টমেন্ট করে। আমরা ইনভেস্টমেন্ট করি, ইনভেস্টমেন্টের টাকাটা দিয়ে আরও ইনভেস্টমেন্ট করি। ইনভেস্টমেন্টের টাকাটা ইনভেস্টমেন্ট করা রেগুলেটরি টাকাই হলো সবচেয়ে একটা বড় মানুষ হবার একটা নির্ণয়। এই নির্ণয়টা আমি পেয়েছি শেয়ার মার্কেট থেকে, যা ডাইরেকশন আছে আমার শাহেদ জিয়াউর রহমান ভাই কোম্পানির সিও, আর আমার সিনিয়র ডাইরেক্টর আনারুল ইসলাম, ইনি আমাকে শেখাইছেন। আর আমি এখানে এসেছি এই জন্যই যে গুজরাটে অনেক ডেভেলপ করেছি আমি, যা বেশি তারিফ করলে হবে না। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কোনো একটা কোম্পানির একটা অফিস খুলতে গেলে কত কষ্ট করতে হয়, কত মেহনত করতে হয়। এই কষ্ট মেহনতটা আমি এখানে এলএফএস ব্রোকিংয়ে শিখেছি। আমি এখন ভালো একটা উচ্চ পদে আছি, কোম্পানির ডাইরেক্টর আছি। আর আমি দোয়া করছি যে এখানকার লোকের ভালোভাবে শেয়ার মার্কেটের ইনভেস্টমেন্ট করার একটা ভালো পথ দিব, আর এটা ইনভেস্টমেন্ট করে ওরা আগে বাড়বেন। থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম। এটা আমার আমরা কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করবো। আনোয়ারুল ইসলাম যিনি রয়েছেন এখানকার ডিরেক্টর। अनुल भाई, एक सवाल तो आपको पूछेंगे, ये ऐसा बात है कि आप जो सर्विसेज यहाँ देंगे ये आपका एलएफएस ब्रोकिंग के जरिए, कुछ लोग हैं जो कि बैंक से ही इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ऐसा क्या बात है कि वो आपके एलएफएस ब्रोकिंग में आए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एट फर्स्ट थैंक्स एवरीवन जो इतना अपॉर्चुनिटी दिया इस्लामपुर में आके हमारा कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड मैं तो सैयद जियाउर रहमान का बहुत थैंकफुल हूँ जो उन्होंने मुझे इस काबिल पहुँचा, जिस कंपनी का डायरेक्टर भी बनाया। आप लोगों का जो क्वेश्चन है बहुत कुछ क्लियर हो गया, शौकत भाई क्लियर कर दिया। लेकिन वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जो क्वेश्चन आपने पूछा इसमें सबका आंसर मिल जाएगा। जो काम हम लोग करते हैं, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, वी आर रनिंग सम ब्रोकिंग फर्म, नेम इज़ एलएफएस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। कभी भी हम लोग किसी को बोला नहीं इधर आ जाइए हमारे पास इन्वेस्ट कीजिए। हमारा जो गुरुदेव है यहाँ बैठे हैं, उन्होंने एक चीज़ सिखाया, मार्केट में लर्निंग को ठीक तरह से कीजिए। लर्निंग रहेगा तो अर्निंग रहेगा, विदाउट लर्निंग अर्निंग तो आता है लेकिन वो स्टेबल नहीं रहता है। जो काम हम लोग करते हैं, है ना, अभी तक आप लोग सिर्फ एक दिखा दीजिए, जब इंडिया में फर्स्ट ब्रोकिंग हुआ था दैट इज़ 1875 में, तब से लेके आज तक एक भी ब्रोकिंग फर्म का नाम बोल दीजिए जो पब्लिक के साथ चीट करके पैसा लेके चला गया, नहीं है। तो उसी बात में मैं बोलना चाहता हूँ, ब्रोकिंग फर्म जो काम हम लोग करते हैं वही काम बैंक भी करते हैं। लेकिन जब कोई काम आप ऐसे ब्रोकिंग फर्म के साथ करेंगे तो आपका सर्विस के लिए मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ 100% सर्विस आपको यहाँ से मिलेगा। और हम लोग सर्विस के ऊपर क्लाइंट को जो है इतना जो हम लोग एक्सटेंशन किया ब्रांचेस सिर्फ सर्विस के ऊपर है। हम लोग कितना बोल सकते हैं, जो सर्विस हम लोग देंगे इंडिया में दूसरा ऐसे कोई ब्रोकिंग फर्म को नहीं मिलेगा जो इतना अच्छा सर्विस आपको मिलेगा। ऐसे सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, आगे जाके आपको प्रैक्टिकली इसको दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर लेंगे यहाँ सैयद जियाउर रहमान हैं जो कि सीईओ हैं। सबसे पहले तो इस्लामपुर में आपका स्वागत है कि आप अपना कंपनी खोलें, और साथ ही साथ ये बात क्लियर कर दिया गया कि ये वो आपके जो एमएल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है उसके जो ब्रांच है एलएफएस ब्रोकिंग, यहाँ क्यों आए ये तो हम सुन ही लिए, लेकिन आपको कहेंगे कि क्या मंसूबा या मकसद है कि जिसके वजह से आप यहाँ ब्रांच खोले इस्लामपुर में? देखिए, मेरा छोटा भाई जो बोल दिया अर्निंग, लर्निंग फिर अर्निंग, सीख आदमी को सिखाना चाहिए। आपके अंदर जो कुछ भी रहेगा वो आदमी को वो देना पड़ेगा। जो शिक्षा आपने पाया है वो शिक्षा आपको देना पड़ेगा। आपने एक और क्वेश्चन किया है जो बैंक में भी कर सकता है, आपके पास क्यों आएगा? तो क्वेश्चन का आंसर अनुल भाई ने दिया है, मैं भी आपको आंसर दे रहा हूँ। कोई मान लो सर आप एमबीबीएस डॉक्टर है, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उसको अगर हार्ट का पेशेंट लेके जाए तो कैसे होगा? नहीं होगा, नहीं देख सकता, देखेगा। लेकिन जिसका हार्ट का पेशेंट है उसका हार्ट के डॉक्टर के पास जाना जरूरी रहता है। तो हम लोग क्या है, हम लोग ओरिजिनली ब्रोकर हाउस है। बैंक से ब्रोकर हाउस नहीं है। बैंक के पास आप बैंकिंग जाइए वो अच्छा मिलेगा, लेकिन ब्रोकिंग का काम ब्रोकर हाउस में अच्छा मिलेगा। इसीलिए हम लोग का ब्रोकर हाउस इस्लामपुर में कामयाब रहेगा। एक सवाल और भी पूछना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप इस कंपनी के सीईओ हैं। खास करके हमारे बंगाल में एक ऐसा सिचुएशन आया था जबकि आपके कह सकते हैं जो मनी मार्केटिंग या जिसको कहते हैं जो माइक्रो फाइनेंसिंग, उसमें बहुत सारे आदमी का धोखाधड़ी हुआ है। तो आप कैसे आश्वस्त करेंगे यहाँ के लोगों को कि यहाँ लोग इन्वेस्ट करने के बाद वो लोग के साथ धोखाधड़ी नहीं होगा? देखिए, हमारी कंपनी 2000 साल से आज 21 साल हो गई है। हमारा शिक्षा तब भी जब मनी मार्केट चिट फंड था तब भी मैंने बोला शेयर बाजार है,
और शेयर बाजार 1 साल के लिए, ये 150 साल से चल रही है इंडिया में, और शेयर बाजार को लोग सभी जानते हैं, नाम तो सभी सुने हैं। जैसे बोलते हैं अमिताभ बच्चन, नाम सभी सुना है, सचिन तेंदुलकर नाम बहुत सुना है, लेकिन देखा बहुत कम लोग हैं। ठीक उसी तरह शेयर बाजार सब घर घर में जानते हैं शेयर बाजार, लेकिन शेयर बाजार है क्या, तो वो जानने के लिए ये ब्रांच है। तो हम लोग को फर्स्ट दिखाना है जो भाई पहले शेयर बाजार सीखो, जो क्या है, व्हाट इज शेयर मार्केट, व्हाट इज डीमैट अकाउंट, उसके बाद आप कोशिश करना शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे यहाँ के जो सीईओ है सैयद जियाजुर रहमान। हम एक बार सर्विसेज के बारे में आपको बता देंगे जो देखते हैं, यह ब्रांच ऑफिस में यहाँ एमओएल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से जो सर्विसेज दिया जाएगा इसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि एमओएल कमोडिटीज़, योर न्यू हॉराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट, एलएफएस ब्रोकिंग, एलएफएस एडवाइजर्स, लेनिक एडवाइजर्स, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं मोल्डरिन ये है। और साथ ही साथ आपका जो ब्रांच है, इस ब्रांच का जो सर्विसेज है वो आपको बता देंगे। एलएफएस ब्रोकिंग का सर्विसेज है डीमेट कमोडिटी इक्विलिटी, और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पीएमएस, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आईपीओ और करेंसी एक्सेट्रा, और साथ ही साथ और भी फाइनेंस और उसके साथ लोन की सुविधा भी यहाँ होगी, वो हमको डिटेल्स बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ जो कॉन्टैक्ट नंबर्स है उस कॉन्टैक्ट नंबर को आप लोग थोड़ा नोट कर ले, ताकि आप लोग मोबाइल से भी इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर है 8637811398, दूसरा नंबर है 9106438481, तीसरा नंबर है 9726818144। और सर्विसेज एक बार बता दें, डीमैट कमोडिटी इक्विटी यानी डीमैट अकाउंट खोलना, उसके बारे में लर्निंग, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सुविधाएं और उसका लर्निंग, इंश्योरेंस, तरह तरह के जितने भी इंश्योरेंस हैं वो इंश्योरेंस, और साथ ही साथ पीएमएस, एसआईपी, आईपीओ और करेंसी है। हेड ऑफिस आप देख सकते हैं यूनिट ऑफ 10 ग्राउंड फ्लोर, प्रभादेवी इंडस्ट्रियल स्ट्रीट, जिसका हेड ऑफिस है प्रभादेवी, मुंबई 25। उसका आप वेबसाइट भी देख सकते हैं www.ifsbroking.in, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है यहाँ आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे। अगर आपको कोई अंदेशा रहे, कोई ये दुविधा रहे, तो आप इसके वेबसाइट खोल के और नंबर से जांच कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस है लिंक रोड, गौरहाटी मोड़, यूबीआई बिल्डिंग, आरामबाग, हुगली, वेस्ट बंगाल। और ब्रांच ऑफिस है हमारी स्टेशन रोड नियर स्टार सिनेमा हॉल, इस्लामपुर, उत्तर दिनाजपुर। आपको एक बार फिर बता दें, एलएफएस ब्रोकिंग में आप देख सकते हैं स्टॉक ब्रोकिंग, जैसे कैश मार्केट सेगमेंट, इक्विटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट एंड करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट, एमसीएक्स सेगमेंट, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और एनसीडी जिसको कहते हैं। उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स बॉन्ड अंडर सेक्शन 54AC और पीएमएस, और साथ ही साथ लेनिक्स एडवाइजर जो है उसका लोन, टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और रियल एस्टेट का आपको सीख दिया जाएगा। साथ ही साथ मोल्डरिन इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, फाइनेंशियल एडवाइजर और कंसल्टेंसी के तहत काम कर सकते हैं, ये आपको बता दें। और साथ ही साथ हमारे दर्शक जो है वो कह सकते हैं कि इसका जो सर्टिफिकेट है সবাইকে অনুরোধ করা হয়েছে আমাদের যে চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে আপনারা সেই চেয়ারে গিয়ে বসে যান আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের প্রোগ্রাম স্টার্ট করে দেওয়া হবে। और आखिर में आपको बता दें, मैं अपने सहप्रतिनिधि को कहूँगा, एलएफएस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड जो इसका ऑफिस है आप देख सकते हैं, एलएफएस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड 311/75 थर्ड फ्लोर, बी विंग, श्रीनाथ प्लाजा, एफसी रोड, शिवाजी नगर, बमबुर्दा, पुणे, महाराष्ट्र में इसका हेड ऑफिस है। और इसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो कि सेबी से लिया जाता है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका सर्टिफिकेट भी इनके पास उपलब्ध है। ये संविभाग प्रबंधक यानी पोर्टफोलियो मैनेजर का सर्टिफिकेट है, ये आप देख सकते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि ऑथोराइज जो सेक्रेटरी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ सेबी का ये है। आपको एक बार बता दें कि यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए जो लोग यहाँ आपको सजेशंस देंगे, मिस्टर राजेश सेतपुता, रिसर्च हेड, टीवी चैनल एक्सपर्ट, मिस्टर अरुण दीक्षित, पीएमएस एक्सपर्ट, मिस्टर अनारुल इस्लाम डायरेक्टर, मिस्टर दिलीप माइती डायरेक्टर, मिस्टर सौमित्र सिन्हा डायरेक्टर, मिस्टर एहसान खान वाइस प्रेसिडेंट, मिस्टर सोनाल भक्त वाइस प्रेसिडेंट और मिस सुमिता सिन्हा रिसर्च टीम के हैं। आप देख सकते हैं इसका सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे थे। और
आपको एक बार बता दें कि इस समय हम लोग मौजूद हैं इस्लामपुर के जो स्टेशन रोड इलाका है उस स्टेशन रोड इलाके में, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे मेहमान के वजह से সেই পয়েন্টগুলো সেই ভাষা দিয়ে আমাদের আমাদের ডাইরেক্টররা এবং আমাদের কোম্পানির সিইও এনারা খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করবেন। আপনারা শুনবেন, বুঝবেন। অবশ্যই এখান থেকে অবশ্যই আপনাদের আপনারাও একদিনকে এই মঞ্চে এসে সিইও এবং ডাইরেক্টর হিসেবে আপনারাও কখনো ভাষণ দিতে পারবেন। দর্শক মল গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের যে এলএফএস ব্রোকিং, এলএফএস অ্যাডভাইজার এবং লেনিক অ্যাডভাইসার্স রয়েছে, তার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কিন্তু সম্মানিত অতিথিরা প্রত্যেকে অডিয়েন্স এবং সকল আমন্ত্রিত দর্শককে আমাদের কোম্পানির পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কারেন্সি এটসেট্রা আপনারা এসে এটা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে আপনারা একদিন এই ইন্ডাস্ট্রিয়ালে এসে আপনারাও কোনো কিছু করতে চান, এটা আমাদের কোম্পানি থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পেরে গেছি। আমরা সেই চিত্রটা আপনারা জেনে খুব আনন্দিত হবেন যে লোকজন যারা এসছে সেই চিত্রটা আমরা সরাসরি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি এবং এভাবেই সমস্ত বিষয়গুলো আপনাদেরকে জানিয়ে দিই। মল গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের যে এলএফএস ব্রোকিং আছে তার অফিসের শুভ উদ্বোধন হলো। এভাবেই সমস্ত আপডেটগুলো পেতে আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকুন। তবে আমরা আরেকবার আপনাদের জানিয়ে দিই, আমরা যে বিষয়টা আপনাদেরকে বলবো সেটা হচ্ছে যে মানি জেনারেটস মানি অ্যান্ড মানি মেক্স দ্য ম্যান অ্যান্ড মানি মার্কেট মেক্স দ্য মানি, এই বিষয়টা রয়েছে। তবু আমরা একটা কথা বলে দিই, এই ক্ষেত্রে শেয়ার মার্কেট বা ট্রেডিং যেটা আছে সেটা কিন্তু সাবজেক্ট টু মার্কেট রিস্ক। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের এই প্রতিবেদন যারা দেখছেন তাদেরকে আমরা বলে দিই যে নিবেশ বা ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু সম্পূর্ণ নিজের স্বেচ্ছার বিষয়। যেহেতু গ্র্যান্ড ওপেনিংয়ে আমরা